دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 5 پیشکش میر کارواں۔ میں حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس پرتو کو دیکھ رہا تھا۔ پچھلے چند روز سے میں اپنے ساتھ عجیب و غریب کیفیات کو محسوس کر رہا تھا اور اسے میں چیکی ایڈوانس مشقوں کا ثمر سمجھتا تھا، اور اب یہ پرتو بھی میرے احساسات کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے اسے چند باتوں کے حوالے سے مختصر بتایا اور پوچھا کہ اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بعض اوقات تمہارے بہت ہی قریب آ جاتا ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاتے، اور کبھی میں تم سے کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہوں، جیسے کہ اس وقت میں یہاں موجود ہوں اور تمہیں نظر آ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں مکمل مادی شکل میں ہوں۔ جب میں مادی شکل میں نہیں ہوتا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تم صرف مجھے محسوس کر سکتے ہو۔ تم کب تک مجھ سے چمٹے رہو گے؟ میں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم بہت ہی سنگ دل ہو وجدان، میرے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہو جیسے میں ہاں تمہارے پیچھے پڑ گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری چیخ کی مشقوں کے نتیجے میں نمودار ہوا ہوں۔ میں تو ایک ایسی ڈھال ہوں جسے تم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہو۔ مجھے ایسی ڈھال کی ضرورت نہیں جس کے اندر وار روکنے کی مکمل قدرت نہ ہو۔ میں نے خاص حوالے سے اس پر طنز کیا۔ ایسی لنگڑی ہمدردی سے میں ایسا ہی اچھا ہوں۔ وہ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، تم چودھری دلدار کی کوٹھی پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو نا؟ کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے ترشی سے کہا، اگر تمہیں معلوم تھا کہ ساحل اس کوٹھی پر موجود نہیں تو پھر ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر تم اس حقیقت سے واقف نہیں تھے تو پھر تمہاری اس معذور دوستی کا مجھے کیا فائدہ؟ میں واقعی یہ نہیں جانتا تھا کہ ساحل کو اس کوٹھی سے کراچی روانہ کیا جا چکا ہے۔ وہ ندامت امیز انداز میں بولا، ابھی میں پکا نہیں ہوا ہوں۔ تم باقاعدہ کسی استاد کی نگرانی میں چیخی مشقیں نہیں کر رہے ہو، اس لیے میں بعض معاملات میں امیچور ہوں اور تمہیں بھی مجھ پر تصرف حاصل نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گھورا، اور تصرف سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ سادگی سے بولا، یہی کہ تم اپنی مرضی سے مجھے اپنے پاس نہیں بلا سکتے اور نہ ہی اپنے حسب منشا مجھ سے کام لے سکتے ہو۔ میں ایک ایسا چینل ہوں جو کسی بھی وقت تمہارے ٹی وی پر ٹیون ہو جاتا ہوں اور اپنی بساط کے مطابق تمہاری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے مشتاق لہجے میں پوچھا، تم پر مکمل طور پر تصرف حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی۔ اگر تم چیکی ایڈوانس مشقیں کرو تو یہ سارا اختیار تمہیں حاصل ہو سکتا ہے، وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا، ورنہ تم اس معاملے میں یوں ہی ادھورے بھٹکتے رہو گے۔ کیا تم اپنی مرضی سے مادی اور ماورائی حالت میں آ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، البتہ اگر تم میرے مشورے پر عمل کر لو تو یہ قدرت حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا، میرے پاس تو سونے اور کھانے کا وقت نہیں، کسی کامل استاد کو کہاں سے تلاش کروں اور پھر اس کی نگرانی میں کب چیکی ایڈوانس مشقیں کروں؟ کاش میرے محترم استاد ماسٹر ہینگ پائی آج زندہ ہوتے تو وہ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے چی کے بارے میں جو کچھ سیکھا ماسٹر ہینگ پائی سے ہی سیکھا تھا۔ آج کے دور میں انسان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن عبادت، ریاضت اور محبت کے لیے اسے فرصت میسر نہیں۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا بقول خود میرا پرتو برہمی سے بولا، وہ اگر یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک یا دو کام کرتا بھی ہے تو ریاکاری اور منافقت کے ساتھ کرتا ہے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، معاشرت کی نظر میں محترم اور معزز نظر آنے کے لیے، جبکہ عبادت، ریاضت اور محبت کو کبھی ناپ تول کر اور ہانہ پوری کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کاموں کی روح سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں اختیار کرنا پڑتا ہے، پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ، پھر جا کر کہیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ میں نے سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، میرے ساتھ نتی ہونے سے پہلے کیا تم کسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھے؟ کیا میں نے کبھی تم پر اعتراض کیا کہ تم مارشل آرٹس اور یوگا پر لمبے لمبے بھاشن کیوں اور کیسے دے لیتے ہو؟ وہ میرے سوال کی تہ میں پہنچتے ہوئے بولا، مسٹر وجدان، میں تمہارا پرتو ہوں، تمہاری شکل و صورت، عادات اور اطوار کی مکمل جھلک مجھ میں موجود ہے۔ یار مسٹر پرتو، میں نے بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا، تم میرا ایک کام کر دو، تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، گویا اس وقت وہ میری فیس ریڈنگ نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ میرے عزائم کی تہ تک پہنچ جاتا۔ میں نے اسے گم گو کی کیفیت میں دیکھا تو وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور جہاں سینگ سمائیں ادھر کا رخ کر لو، مجھے تمہاری مدد یا ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اسے برا سا منہ بنایا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تم نے مجھے اپنی بے سمت مشقوں سے ادھورا تحلیق کیا ہے۔
मैं दरमियान में लटक कर रह गया हूँ। ये बाइख्तियार होना और ना ही बेख्तियार होना मेरे बस में नहीं है, ना इधर का रहा ना उधर का। अगर मैं कुछ अरसा इसी तरह मोहल्लक रहा तो बहुत बुरा हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही होगा वजदान। मसलन ऐसा क्या हो जाएगा? मैंने मुतसफ़ाना अंदाज में पूछा। वो गंभीर लहजे में बोला, इस कायनात में नेकी और बदी दोनों किस्म की कुव्वतें कार फरमा है। सबसे ज्यादा गैर महफूज वो होता है जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती, मेरी तरह मोहल्लक होता है। अगर तुमने पूरी तरह से बाकायदा अच्छी की एडवांस मशक़ें करके मुझे हासिल ना किया तो इस बात के इम्कानात है कि बदी की कोई कुव्वत मुझे अपने चुंगल में जकड़ ले। फिर मैं उस कुव्वत और हामले हज़ा की मर्जी और इख्तियार के मुताबिक इस्तेमाल होने पर मजबूर हो जाऊंगा। तुम्हारे दुश्मन मुझे तुम्हारी मुखालफत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि तुम नेकी और सच्चाई की निशानी हो, जबकि तुम्हारा दुश्मन बदी और जुल्मत की अलामत है। तुम तो बहुत ही खतरनाक बातें कर रहे हो। मैं वाकई तशवीश में मुब्तला हो गया था। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जो संगीन और तल्खी होती है। अचानक दिल की बात मेरी जुबान पर आ गई। क्या तुम मुझे साहिल के बारे में बिल्कुल दुरुस्त मालूमात फराहम कर सकते हो? तुम्हारी महबूबा के बारे में मैं भी इतना ही जानता हूँ जितना कि तुम, इसलिए आई एम सॉरी। वो इतना कहकर खामोश हो गया। मैंने हफ की अमेज नजर से उसे देखा और फिर बेजार से अंदाज में कहा, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। अगर मैं अच्छी की एडवांस मशक़ें बाकायदगी के साथ करके तुम्हें अपने काबू में ना ला सका, फिर इन मशकों को तर्क करके हमेशा हमेशा के लिए तुमसे निजात हासिल कर लूंगा। मैं उस मुतज़ब्ज़ब और गैर यकीनी फिजा में रहकर यकसोई से कोई काम भी नहीं कर सकता। उसे अपने होंठों को कुछ इस अंदाज में हरकत दी जैसे मेरी किसी बचकाना बात पर या हरकत पर तंज या मुस्कुराता हो। मैं गहरी नजर से उसे मुसलसल देखे जा रहा था। उसके लबों को जुम्बश हुई और उसे संजीदा लहजे में कहा, जरा अपने अकब में तो देखो। मैंने बेसाख्ता पलट कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। बहरूपी की इस हल्की हरकत पर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैं एक झटके से उसकी जानिब मुड़ा ताकि उसे खरी खरी सुना दूं, लेकिन मेरी यह हसरत में बदल कर रह गई। वो सोफा मेरा मुंह चुड़ा रहा था, जहां एक लम्हा पहले मेरा पर तो वो नकली वजदान बैठा मुझसे मुकालमा कर रहा था। मैंने बेख्तियार पूरे ड्राइंग रूम को अपनी नजर से छान मारा। वो सोफा ही नहीं बल्कि वो कमरा भी उसके वजूद से हाली हो चुका था। उसी वक्त नीचे मेन रोड पर किसी मोटरसाइकिल के स्टार्ट होने की आवाज उभरी। मैं लपक कर ड्राइंग रूम की खुली खिड़की में पहुंचा और मेरी निगाह ने उसके रुखसत का मंजर कैप्चर कर लिया। वो आफत ज्यादा अपनी नीली जीबी 100 रेड पर सवार होकर बड़ी तेजी से मेरे विजन से निकलता चला गया। मैं अपने हाथों से सर को थाम कर एक सोफे पर ढह गया। मैंने कोई सीधी सादी और पुरअमन जिंदगी नहीं गुजारी थी। आंख खोलते और होश संभालते ही हंगामों से मेरा वास्ता पड़ गया था। जिन कारईन ने इब्तिदा से मेरी दास्तानी हयात पढ़ी है वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सनसनीखेजी और मेरे दरमियान हमेशा चोली दामन के साथ रहा है। कैसा कैसा फाइटर और फन का माहिर मेरे मद्दे मुकाबल आया। भांत भांत के गुंडों को मैंने बरता और परखा। जिंदगी के इस कठिन और सकीन सफर में बाज पुरस्कार शहसिया से भी मेरा ताल्लुक रहा, जो बेपनाह शक्तियों के मालिक थे। ग्रैंड मास्टर हैंग पाई, योगी गौतम बोश, पंडित धीराज और नीलगिरी। लेकिन इस नकली वजदान ने मुझे घुमा कर रख दिया था और ये कमबख्त अपनी तहलीक का जिम्मेदार भी मुझे ही ठहरा रहा था। अपने बकौल वो मेरा परतू बन बैठा था। बहरूपी वजदान के बारे में सोचते हुए अजहुद मेरा ध्यान नीलगिरी की तरफ चला गया। मेरे बयान करदा हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक अफराद में नीलगिरी ही बाकी बची थी। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में यह ख्याल आया कि नकली वजदान के पीछे कहीं नीलगिरी का हाथ ना हो। जब डार्लिंग चम से मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी तो उस वक्त भी डार्लिंग की पुरस्कार हरकत को देखते हुए मैंने नीलगिरी के बारे में सोचा था। लेकिन अजाबाद नीलगिरी की इस तरदीद ने मेरा इस तरफ से ध्यान हटा दिया था। नकली वजदान के हवाले से नीलगिरी के बारे में सोचते हुए मुझे जल्द ही अपना ख्याल रद्द करना पड़ा। नीलगिरी ने हमेशा मुझे साहिल से दूर रखने की कोशिश की थी, जबकि नकली वजदान इसके बिल्कुल बिलअक्स अमल कर रहा था। उसके अफाल में नीलगिरी का दखल नहीं हो सकता था। वैसे भी परबतू की शहजादी नीलगिरी से आखिरी मुलाकात में मुझे धमकी दी गई थी कि वो अब अजहुद मेरे पास नहीं आएगी बल्कि मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर देगी। मुझे हिमालय की गोद में उसके मस्कन तक जाना होगा। नकली वजदान के बारे में सोचते हुए मुझे उकताहट सी होने लगी। एक लम्हे के लिए मैंने यही सोचा कि आइंदा ची से मुतल्लिक कोई मश्क नहीं करूंगा, इस तरह खुद ही उससे जान छूट जाएगी। लेकिन उसी वक्त परतों के कहे हुए संगीन अल्फाज खतरे की घंटी बनकर मेरे जहन में गूंजने लगे और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर वाकई वो किसी बदी की कुव्वत के हत्थे चढ़ गया तो मेरे लिए बड़ी ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी।
बदी की कुव्वत का मतलब यही था कि वो मेरे दुश्मनों के हाथ का खिलौना बन जाता और मेरे सामने मसाइब का एक वसी और इस दर खुल जाता और फिर मैं साहिल और उसकी तलाश पर तवज्जो मरकूज रखने के काबिल ना रहता। मैंने आंखें खोली और एक झटके से सोफा छोड़ दिया। ये आराम करने या सोचों में गुम रहने का वक्त नहीं था। ड्राइंग रूम की दीवार पर नसब क्लॉक सुबह के 5:15 बजा रही थी। मैं इस मुसम्मम इरादे से उठा कि आज ही से मैं ची की एडवांस मशकों को बाकायदगी से करूंगा ताकि जल्द अज जल्द पर तो मेरे तसर्रुफ में आ जाता। मैं इससे कोई काम लेता नहीं या लेता ये तो बाद में सोचने की बात है। फौरी तौर पर कम से कम इतना तो हो जाता कि वो दुश्मनों के कैंप में पहुंचने से बच जाता। मैंने वॉशरूम में 10 मिनट सर्फ करके खुद को फ्रेश अप किया और सांस की मशक के लिए तैयार हो गया। फिजा में अभी तक तारीकी का बसेरा था और इन दिनों लगभग 7:15 बजे सुबह सूरज तुलू होता था। ये वक्त सांस की मशक के लिए इंतहाई मौजू था। उस बेडरूम की एक खिड़की शमाल के रुख गैलरी में खुलती थी। मैंने वो खिड़की वाह की और बेडरूम के कालीन पोश फर्श पर आलती पालती मारकर कमल आसन में बैठ गया, जो कि पदम आसन या सुख आसन भी कहलाता है। प्राणायाम के फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए मैंने सांस की इब्तदाई मशकें कर चुका था, जिनमें स्ट्रोक ब्रीदिंग भी शामिल थी। अब मुझे कुछ और आगे बढ़ना था। मास्टर हैंग पाई की तालीमात मेरे जहन में नक्श थी। सांस की नई मशक में मुझे अपने अंदर एक महसूस गदूद को काम में लाना था, दिमाग के अगले हिस्से में पेशानी के ऐन वस्त में पाया जाने वाला। ये महसूस गदूद पीनियल ग्लैंड कहलाता है, जिसे बाज लोग तीसरी आंख का नाम देते हैं। ये गदूद ख्यालात की तरसील के लिए बटन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हिंद औरतें अपने माथे पर ऐन इसी मुकाम पर बिंदियां लगाती हैं, जिसके अकब में ये गदूद पाया जाता है। इसमें महसूस मुकाम पर लिया गया बोसा कैफ आवर और निशात अंगेज एहसास को जन्म देता है। प्राणायाम के फ्रेम में की गई मशकों में सांस खींचना और सांस छोड़ना बहुत ही अहमियत रखता है। मैंने पद्म आसन में रहते हुए आंखें बंद कर ली और गहरी सांसों के बाद महसूस मशक शुरू कर दी। ची का खुफिया मकाम नाव के अकब में रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोहरे के करीब है। मैंने इस मुकाम को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया और सांस खींचकर अपने पेट को हवा से भर लिया। इसके बाद मैंने मुकाम में नाव पर एक भरपूर स्ट्रोक लगाकर सांस को खारिज कर दिया। मुतद्दिद बार ये अमल दोहराने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे नाव के मुकाम से हरारत खारिज हो रही हो। कुछ इस किस्म का एहसास है जैसे किसी भट्टी के अंदर लोहा गिर रहा हो। जब उस लोहे की तपिश मुझे पूरे पेट में महसूस होने लगी, मैंने सांस का मुतबादल निजाम कायम कर दिया। अब मैं हवा को पेट में भरने की बजाय फेफड़ों में रोक रहा था और उसके साथ ही ये तस्वर कर रहा था कि पेट के जेरी हिस्से में दहकती आग की आंच धीरे धीरे सफर करके मेरी तीसरी आंख यानी पीनियल ग्लैंड की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही वो महसूस तपिश उस ग्लैंड को छूती, मैं आहिस्ता आहिस्ता सांस खारिज करते हुए ब्रीदिंग का एक साइकिल मुकम्मल कर लेता। इस अमल के असरात जल्द ही जाहिर होने लगे। मैंने अपनी पेशानी को तपता हुआ महसूस किया, गोया ची अपने पोशीदा मस्कन से निकलकर धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड की समत बढ़ रही थी और उसे मुतहर्रिक कर रही थी। 5 चक्कर लगाने के बाद मैंने मशक खत्म कर दी। इब्तदाई तौर पर ज्यादा करना मुनासिब नहीं था। मास्टर हैंग पाई के मुताबिक तेज दौड़ने से फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता था। मैं इब्तदाई मशकों से अपनी हापीदा ची को बेदार कर चुका था। अब उसे आहिस्ता आहिस्ता दिमाग की तरफ लाकर पीनियल ग्लैंड को मुतहर्रिक करना था ताकि अपनी मर्जी के अहकाम की तरसील को मौसर और यकीनी बनाया जा सके। मैंने मशक खत्म की तो बहुत ही थकावट महसूस हो रही थी। आंखों में नींद का हमार भी भर चुका था। मैंने एक भरपूर नींद लेने का फैसला किया और बिस्तर पर गिरकर आंखें मूंद ली। इस किस्म की दिमागी और रूहानी मशकों के बाद आराम बहुत ही जरूरी होता है। जल्द ही नींद की संदलें और गुदास बाहों ने मुझे अपनी रेशमी गिरफ्त में ले लिया। वो एक छोटी सी बंद वैन थी, छोटे ट्रक से मुशाबा। वो वैन बारदारी के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसके सीने पर सुर्ख रंग के बड़े से अल्फाज में प्रेस लिखा हुआ था। मज़कूरा वैन मिन्हास बाकर की मलकियत थी और तबाशुदा अखबार को प्रेस से अखबार मार्केट तक लाने का फरीजा अंजाम देती थी। लेकिन इस वक्त वो एक खास मिशन पर जा रही थी। इस वैन के ड्राइविंग कैबिन में सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे। पैसेंजर सीट पर मैं बराजमान था, जबकि स्टीयरिंग पर शहजाद अली बैठा हुआ था। थोड़ी देर कबल मैंने इसे फोन के जरिए इस बात की तस्दीक कर ली थी कि मेरी अमानत को लाहौर से कराची पहुंचा दिया गया था। इत्तफाक से मेरी बात कराची में अनायत बाजवा से हुई और उसे यहाँ पाकर मुझे शदीद हैरत भी हुई। मैंने जब हैरत का इजहार किया तो उसने बेतकल्फी से कहा, यार तुम जल्दी से आ जाओ, फिर तुम सारी तफसील जान लोगे। और मैं जल्दी से उस गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विस की जानब जा रहा था जहां अनायत बाजवा और मेरी अमानत फैसल मौजूद थे। इस वक्त शाम के 7 बजे थे। बंद वैन का बंदोबस्त मिन्हास बाकर ने किया था।
न सिर्फ ये बल्कि उसने फैसल को ठहराने का भी हासा माकूल और तसल्ली बख्श इंतजाम कर दिया था। फैसल को लाहौर से कराची लाने में इसका मशवरा भी शामिल था। फैसल को एक ज़ेर तामीर बंगले में रखने का फैसला हुआ था। मज़कूरा बंगला मिन्हास की मलकियत था, जिसका तामीरी काम कुछ वजूहात की बिना पर कुछ अरसे से रुका हुआ था। ये बंगला इसी इलाके में वाक़ था जहां मैंने मियां जाहिद हुसैन को इन्ना लिल्ला किया था। शायद उसमें भी कुदरत की कोई मसलहत थी कि चौधरी नवाज़िश अली के हासबंदों से निपटने के लिए डिफेंस सोसाइटी का वो गैर आबाद इलाका, वो फेस मुख्तिस हो चुका था। हम बातें करते हुए टावर की समत बढ़ रहे थे। मज़कूरा एजेंसी उसी इलाके में वाक़ थी। शहजाद हासा पुरजोश और खुश नजर आता था। उसने कहा, वजदान, तुम कराची आए हो तो लगता है कि जिंदगी में एक नई हरारत दौड़ने लगी है। मैं काफी दिनों से हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ था। यकीन जानो, मैं तुम्हारी वजह से अपना प्रोग्राम मंसूख कर दिया है। मैं चौंक उठा। कौन सा प्रोग्राम? मैंने इस्तफसार किया। मिन्हाज साहब की बेटी की शादी के फौरन बाद, यानी आज मैं जेहलम जाने वाला था। उसने बताया, कई बरसों से मैंने उधर का रुख नहीं किया, लेकिन तुम्हारी अचानक आमद और फैसल के हवाले से होने वाली कार्रवाई ने मुझे यहीं रोक लिया। मुझे उम्मीद है कि ये मिशन बहुत ही सनसनीखेज साबित होगा और हाथ पांव खोलने का भरपूर मौका मिलेगा। हालात तो कुछ इसी किस्म की सूरत दिखा रहे हैं, मैंने जुबानी अंदाज में कहा। यह बात मुझे मालूम थी कि शहजाद अली का ताल्लुक जिला जेहलम से था। वो 10 साल पहले कराची आया और फिर यहीं होकर रह गया था। उसके अजीज रिश्तेदार वहीं उसके आबाई इलाके में थे। वैदान, मैंने सुना है कि फैसल मार्शल आर्ट्स में भी माहिर है। शहजाद ने मुझसे पूछा। मैंने जवाब दिया, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। उसने इस मैदान में लगभग 10 साल लगाए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक वो ब्लैक बेल्ट सेकंड इन है। किसी जमाने में मुझे भी जूडो कराटे सीखने का बहुत ही शौक था, शहजाद ने बताया। मैंने एक क्लब में दाखिला भी लिया और इन फनून में खासी हद तक महारत भी हासिल कर ली थी, लेकिन ब्लैक बेल्ट तक ना पहुंच सका। कराची आने के बाद मसरूफियत ने किसी तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं लेने दी। अलबत्ता कभी कभार हाथ पांव चलाने का मौका जरूर मिल जाता है। वो चंद लम्हात के लिए मुतवक्किफ हुआ और फिर पूछने लगा, ब्लैक बेल्ट तो मास्टर्स को दी जाती है? हाँ, ये मास्टर बेल्ट कहलाती है। मैंने कहा। इसके बाद डॉन शुरू हो जाते हैं। वो ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए ख्याल अफरोज लहजे में बोला। इनका अंदाज खुद गुलामी कैसा था। वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन और ब्लैक, लेकिन मैं तो ग्रीन बेल्ट से भी आगे न जा सका। ये भी बहुत है, मैंने कहा। शहजाद मार्शल आर्ट्स अमल का नाम है। जो शख्स जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ही परफेक्ट हो जाता है। बेल्ट वगैरह से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद मैंने उससे पूछा, तुमने फवाद के मामले में क्या पेशरफ्त की है? वो ख्यालात की दुनिया से बाहर आ गया। मैंने अपने जिस दोस्त का जिक्र किया था उसका नाम सरमद है। मैं आज दिन में उससे जाकर मिला था और मुझे मालूम हुआ कि फवाद उसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 402 में गुलाम जिलानी नामी एक शख्स के पास आता जाता है और आजकल वो रोजाना ही वहां जा रहा है। ये एक अहम इतला थी। मैंने शहजाद से पूछा, तुम्हारा दोस्त सरमद किस फ्लैट में रहता है? 302 में। उसने मुझे बताया, यानी सरमद वाला फ्लैट गुलाम जिलानी के फ्लैट के ऐन नीचे है। बिल्कुल यही बात है, वो तायदी अंदाज में बोला। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर चंद लम्हात के बाद कहा, अगर फवाद रोजाना ही वहां जा रहा है तो फिर उसे शिकार किया जा सकता है। घात के लिए सरमद का फ्लैट हासा मौजू साबित होगा। शहजाद ने एक मरतबा फिर मेरी तायद की। मैंने कहा, तुम उस गुलाम जिलानी नामी शख्स के बारे में भी मालूमात हासिल करने की कोशिश करो। अगर फवाद वहां आ रहा है तो ऐन मुमकिन है गुलाम जिलानी भी CFK के तंजीम से वाबस्ता हो। CFK, क्राइम फ्री कराची नामी वो ढकोसला तंजीम शहजाद से खुफिया नहीं रही थी। गुलिस्तान वाले मिशन में वो शुएब गौरी और इस तंजीम के बारे में काफी कुछ जान चुका था। मजीद मिन्हास बाकर ने भी बता दिया था, क्योंकि वो शहजाद पर बहुत ही भरोसा करता था। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। अनायत बाजवा एक दुबले पतले दराज का शख्स के साथ एजेंसी के बाहर ही खड़ा नजर आ गया था। मुझ पर नजर पड़ी तो वो सीधा मेरे पास आ गया। इस दौरान में हम गाड़ी से बाहर आ गए थे। रस्मी अलेक्स लैग के बाद मैंने पूछा, बाजवा जी, आप यहाँ कराची में? मैं तुम्हारी हैरत अभी दूर कर देता हूँ, बस इतना समझ लो ये सब फरीद पाशा का किया धरा है। वो अपनी तोंद को थरथराते हुए बोला। फिर मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहने लगा, इस वैन की चाबियां दो। जब तक तुम्हारी अमानत इस वैन में मुंतकिल होती है हम थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। मैंने शहजाद को इशारा किया तो उसने चाबियों वाला गुच्छा बाजवा को दे दिया। बाजवा ने वो चाबियां अपने करीब खड़े हुए लंबे तड़ंगे शख्स की जानिब बढ़ा दी। वो वहां से जाने लगा तो मैंने पूछा, क्या मेरी अमानत को कहीं और रखा गया है? हाँ। बाजवा ने इस बात में गर्दन हिलाई। एहतियात के पेश नजर ऐसा किया गया है। तुम तो जानते ही हो सुराखदार संदूक का मामला कितना हसास है।
किसी को भी इसकी भनक भी पड़ गई तो सबके लिए बड़ी ही मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तुम फिक्र ना करो, अभी थोड़ी देर में ये आदमी अमानत को तुम्हारी वैन में रख कर ले आएगा। ये तुमने अच्छा किया। उसे जाती हुई वैन की जानिब इशारा करते हुए कहा, ऐसे कामों के लिए बंद गाड़ी ही मुनासिब रहती है। फिर तुम्हारी वैन पर तो प्रेस का लफ्ज किसी गार्ड की मानद मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी अमानत के साथ बाहिफाजत मंजिल पर पहुंच जाओगे। इधर नजदीक ही एक वेयर हाउस में तुम्हारी अमानत को रखवा दिया गया है। मैंने ऐसे मामलात में इस किस्म की एहतियात करना जरूरी समझी। वो सब तो ठीक है, मैंने कहा, लेकिन आप किस चक्कर में यहाँ मौजूद हैं? उसने जवाब देने से पहले सवालिया नजर से शहजाद अली की तरफ देखा। मैंने सर की महसूस जुम्बज से बाजवा को बावर कराया कि शहजाद भरोसे का आदमी है। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये सब फरीद पाशा की मेहरबानी से हुआ है। आओ मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊं। बात खत्म करते ही उसने एजेंसी के दफ्तर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मजबूरन हमें भी उसकी तकलीद करना पड़ी। फिर जैसे ही मैंने दफ्तर में कदम रखा, मैं उछल कर रह गया। एक कुर्सी पर जरगुल बैठी थी। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो खिल उठी। जरगुल, तुम यहाँ? मैं हैरत से डूबे हुए लहजे में पूछते हुए बोला। जरगुल की बजाय अनायतुल्लाह बाजवा ने कहा, बताता हूँ, सब बताता हूँ यार, जरा आराम से बैठ तो जाओ। मैंने और शहजाद ने कुर्सियां संभाल ली। इस दौरान में वो गोरी चुट्टी पश्तून तो शहजाद बिल्कुल खामोश बैठी रही। यूं महसूस होता था उसके मुंह में जुबान ना हो। बाजवा ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह करते हुए कहा, तफसीली बातें तो तुम इस लड़की से ही पूछना। मैं तो पाशा की फरमाइश पर इसे लाहौर से कराची लाया हूँ और इसके लिए मुझे अपनी गाड़ी में एक लंबा चौड़ा सफर करना पड़ा है। यकीन जानो मेरे बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा है। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद गोया दोबारा हुआ। चलो एक लिहाज से ये अच्छा ही हुआ। इस तरह मैं कराची में बहुत से लोगों से कारोबारी मुलाकातें भी कर लूंगा। यहाँ आने का बहाना बन गया, वरना निकलने का मौका कहाँ मिलता है। आप फरीद पाशा की किसी मेहरबानी का जिक्र कर रहे थे। मैंने बाजवा को पटरी से उतरते हुए देखा तो याद दहानी के अंदाज में कहा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो बातोनी शख्स जल्दी से बोला। तुम्हारे जाने की कुछ ही देर के बाद जरगुल मेरे दफ्तर में आई और मुझसे कहने लगी कि मैं भी कराची जाऊंगी। मैंने पूछा, किस सिलसिले में? और फिर मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? उसने कहा कि मुझे अनाज वाले ट्रक के साथ जाने दो। ये एक अजीब और नामुमकिन सी बात थी। मैंने इसे टालना चाहा तो उसने कहा कि मैं फरीद पाशा से इसकी बात करवा दूं। ये पहले तुम्हारे साथ मेरे दफ्तर से होकर जा चुकी थी और फिर आई। आपने जिस तरह मुझे आधी रात से घुमा कर रखा हुआ था, इससे आप लोगों की अहमियत का मुझे अंदाजा हो गया था। मैंने सैयदपुर में फरीद पाशा से इसकी बात करवा दी। उसे पाशा से पता नहीं क्या गिटपिट की। उसने मुझे कहा कि मैं भी ट्रक के साथ कराची जाऊंगा और इस लड़की को अपने हमरा लेकर जाना होगा। बस ये है सारा किस्सा। बाजवा ने दोनों हाथ फैलाए और बोला, अब तुम संदूक बंद अमानत के साथ साथ इस जुबान बंद इमानत को भी वसूल कर लो। मैंने जरगुल को हैरत से देखकर पूछा, तुमने फोन पर फरीद पाशा से क्या गिटपिट की थी? बता दूंगी, जरा फुर्सत तो मुझे सराने दो। वो मानी है अंदाज में बोली, अभी तो तुम्हें बहुत से किस्से सुनना है। मैं अपनी दास्तान सुनाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। मैं उस गुलाब रंगत पश्तून दुशेजा के बारे में सोचने लगा। अभी ये कल सुबह ही की बात थी जब मैं लाहौर में था और जरगुल ने हमारे साथ कराची आने की ख्वाहिश जाहिर की थी। और जब हमने इसे सूरत हाल से आगाह किया तो उसने इंतहाई गैर मुतवक्का रवैये का मुजाहरा किया था। वो ये कहते हुए गाड़ी से उतर गई थी कि मुझे जाना होगा, मेरी मंजिल मुझे पुकार रही है। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कराची में जरगुल से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। मैंने उसके तेवर से भांप लिया कि सरे दस वो मेरे किसी पूछने का जवाब नहीं देगी। लिहाजा मैंने सवाल करने से इज्तनाब बरता और मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। थोड़ी देर के बाद मुझे इत्तला दी गई कि मेरी अमानत के साथ बंदा एजेंसी के दफ्तर से बाहर पहुंच गया है। मैं उठकर खड़ा हो गया और फिर हम सब दफ्तर से निकल आए। इनायतुल्लाह बाजवा ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे अमानत चेक करवा दी और कहा कि संदूक की सेटिंग पहले से मैंने एहतियातन इसके अंदर खाने पीने की चंद अशिया भी रख दी थी ताकि अगर ये बंदा होश में आ जाए तो इन पर अपना मुंह मार सके। मेरे ख्याल में उसने कुछ मुंह मारी की कोशिश तो की है। मैंने बगौर उस संदूक के अंदर मौजूद फैसल का जायजा लिया और बाजवा की बात से इत्तेफाक करना पड़ा। हाथ मुंह बंधे होने के बावजूद भी उसने मुंह के जरिए अपने मैदे में कुछ उतारने की कोशिश की थी। बाजवा ने मज़कूरा अशिया उसकी पहुंच में रखी थी। उस वक्त फैसल नीम बेहोश था। उस तालाबंद संदूक की चाबी मेरे पास महफूज थी। मैंने अनायतुल्लाह बाजवा का बेहद शुक्रिया अदा किया और उससे एक भरपूर मुसाफा करने के बाद वहां से चला आया। ये बताने की जरूरत नहीं कि वापसी के सफर में जरगुल भी हमारे साथ थी। वैन का ड्राइविंग कैबिन हासा कुशादा था। जरगुल खिड़की यानी शीशे वाली साइड पर मेरे बराबर बैठी हुई थी। वो बदस्तूर खामोश और संजीदा थी।
میں نے محسوس کیا شہزاد کنکھیوں سے کئی بار الجھن زدہ انداز میں زرگل کو دیکھ چکا تھا. پھر اس کی تشویش زبان پر آ گئی. مجھ سے کہنے لگا, وجدان ان محترمہ کے بارے میں کچھ نہیں میں جانتا. میری بات محسوس نہ کرنا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہیں بنگلے پر لے جانا مناسب ہوگا؟ بنگلے سے اس کی مراد وہ زیر تعمیر عمارت تھی جہاں ہم نے فیصل کو رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. میں نے کہا, ان محترمہ کے بارے میں جان لو کہ یہ بڑی ہی دشمندار اور جنگجو خاتون ہے, لہٰذا ان مشن میں ان کی موجودگی میں کوئی حرج نہیں. ویسے بھی یہ فیصل والے معاملے سے اچھی طرح واقف ہے, تم اسے اپنا بااعتماد ساتھی بھی سمجھ سکتے ہو. شہزاد نے گہری سانس خارج کی اور مطمئن انداز میں گردن ہلانے لگا. ٹھیک 8:30 بجے ہم بنگلے پر پہنچ گئے. وہ بنگلہ ڈیفنس سوسائٹی کے ایک ایسی فیز میں تھا جو ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا. مکمل اور رہائشی قابل بنگلوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی, اور جو بنگلے واقعی تیار تھے ان میں بھی ضروری نہیں تھا رہائش اختیار کر ہی لی گئی ہو. منہاس باقر والا بنگلہ اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں تھا. نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی منہاس نے بتایا کہ اس بنگلے کی تعمیر کا کام کیوں روک دیا گیا تھا. شہزاد نے بنگلے کے گیٹ کے نزدیک ہی وین روکی اور ایک محسوس انداز میں ہارن بجایا. اس کے بعد گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگا. لگ بھگ 15 سیکنڈ کے بعد ایک گن بردار شخص گیٹ پر نمودار ہوا اور اس نے ہمارے لیے گیٹ وا کر دیا. ہم وین سمیت بنگلے کے اندر پہنچ کے گیٹ دوبارہ بند ہو گیا تھا. منہاس باقر نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس بنگلے کا انتخاب کیا ہوگا. شہزاد نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے بھی وہاں آتا رہا تھا. میں نے شہزاد اور گن بردار شخص کی مدد سے فیصل والے سوراخ دار صندوق بنگلے کے ایک دور افتادہ کمرے میں پہنچایا. اس کمرے کے ایک حصے میں فرش سے چھت تک پرانے اخبارات کے بنڈل رکھے ہوئے تھے. منہاس باقر شاید اسے گودام کے طور پر استعمال کر رہا تھا. بعد میں مجھے معلوم ہوا بنگلے کے مزید 2 کمرے اخبارات کے بنڈلوں سے بھرے ہوئے تھے. ہم نے صندوق کھول کر فیصل کو باہر نکالا. اس کی حالت دیدنی تھی. وہ پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا, لیکن اس کی قسم پرسی مثالی تھی. وہ جتنے طویل اور تکلیف دہ سفر کے بعد وہاں پہنچا تھا, اس نے فیصل کی مت مار دی تھی, اور صندوق نشین ہونے سے پہلے بھی اس کے ساتھ خاصا شاندار سلوک ہو چکا تھا. جتنی دیر میں فیصل کی میں بندشیں کھولتا, شہزاد نے بنگلے کے اندر سے ضروری سامان مہیا کر دیا جس کا پہلے سے بندوبست کیا گیا تھا. اس دوران میں گن بردار رکھوالا مسلسل فیصل کو اپنے نشانے پر رکھے رہا تاکہ وہ کسی مہم جوئی کے خیال سے باز رہے. میں نے شہزاد کے فراہم کردہ سامان میں سے ایک ہتھ کڑی نکالی اور فیصل کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر اسے یہ آہنی زیور پہنا دیا. وہ اگرچہ ہوش میں تھا, لیکن گن پوائنٹ پر اس نے کسی جرات مندی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش نہیں کی. تاہم اس نے ہاتھ پاؤں جھٹک کر کمزور سا احتجاج ضرور کیا. بہرحال وہ صندوق والی زندگی کے بنسبت اب ہاتھ سے اچھے حال میں تھا. میں نے تھوڑی سی کوشش کر کے اس کے پاؤں میں بیڑی پہنا دی. پھر ایک مضبوط آہنی زنجیر کو ہتھ کڑی اور بیڑی کے ساتھ منسلک کرنے کے بعد اس زنجیر کا دوسرا سرا چھت میں لگے ہوئے کنڈے میں پھنسا دیا. اس زنجیر کی لمبائی اتنی تھی کہ فیصل اس کمرے میں 2-4 قدم چل سکتا تھا. گن بردار شخص نہایت ہی چکنا نظر سے مجھے یہ کاروائی کرتے ہوئے دیکھتا رہا, اور جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو اس نے ستائشی لہجے میں کہا, سر جی, آپ نے تو اس نوجوان کو ایسا فٹ کر دیا ہے کہ اس کی نگرانی کی ضرورت بھی نہیں رہی, لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کی طرف سے کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرو گے. میں نے تنبیہی انداز میں کہا, تم نہیں جانتے یہ کتنا خطرناک ہے. اسے بے دست و پا دیکھ کر کسی ہوش فہمی نہ پڑ جانا. اوکے سر, وہ فرما برداری سے بولا. آپ فکر ہی نہ کریں, میں اپنے کام کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہوں. شہزاد نے کہا, وجدان سہیل اپنے فن میں ماہر ہے. مجھے امید ہے کہ امن و امان کی کوئی صورتحال پیش نہیں آئے گی. ویسے بھی پیش رفت کے طور پر یہ سارا وقت اسی بنگلے پر ہی گزارے گا. یہ سورما کوئی غلط حرکت نہیں کر سکے گا. اس کا اشارہ واضح طور پر فیصل کی جانب تھا. تم ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ لے آؤ, میں نے شہزاد سے کہا, تاکہ ہم اپنا کام بلکہ اہم کام شروع کر سکیں. میرے خیال میں اب یہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے. اس بنگلے میں فون تو موجود تھا, لیکن میں دانستہ چودھری نوازش علی کو فیصل کی آواز براہ راست سنوانا نہیں چاہتا تھا. اس کے لیے یہ ریکارڈر جھلکیاں ہی کافی ہوتی, اور اگر وہ زیادہ ہی ضد کرتا تو پھر بعد کی بعد میں دیکھی جاتی. اس بنگلے کے آس پاس دور دور تک کوئی اور بنگلہ نظر نہیں آتا تھا, لیکن منہاس باقر نے اپنے تعلقات اور اختیارات استعمال کر کے اس ادھورے بنگلے میں بھی فون کی سہولت حاصل کر لی تھی. تعلقات اور اختیارات ایک طرح سے حل المشکلات ہوتے ہیں جو ہر ناممکن کو چٹکی بجاتے میں ممکن کر دکھاتے ہیں. عنایت اللہ باجوہ نے مجھے بتایا تھا کہ کراچی پہنچنے کے بعد اس نے فیصل کو چند گھونٹ پانی بھی پلایا تھا. میں نے دوبارہ اسے تھوڑا کھلا پلا دیا تاکہ وہ بات کرنے کے قابل ہو سکے. اس میں ذرا توانائی آئی اور وہ نفرت امیز نظر سے مجھے گھورنے لگا.
मैं उसके पूरी तरह बहाल होने का इंतजार किया, फिर टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। फैसल बेचारगी और लाचारी की इंतहा को पहुंचा हुआ था, तहम उसकी रगों में चौधरी नवाज़िश अली का खून दौड़ रहा था, लिहाजा उसकी फुंकार में कोई कमी न आई। आवाज धीमी मगर तनतना वही था, वही फिरौनियत का गमाज और अपने सामने किसी को कुछ ना समझने वाला अंदाज। वो धमकी में इस लहजे में बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं वजदान, तुम्हारी इस हरकत का कितना भयानक नतीजा सामने आएगा। मैंने कहा, मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है, हरकत में बरकत है, इसलिए मसरूफ रहने की कोशिश करता हूँ, और जहां तक किसी भयानक नतीजे की बरामद का ताल्लुक है तो मुझे यकीन है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही भयानक होगा। वो चंद लम्हे कीना तो उस नजर से मुझे देखता रहा, फिर गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारी बहादुरी और शुजात के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन तुम्हारे रवैये को देखकर लगता है कि वो सब झूठे फसाने थे। तुम दर हकीकत बहुत ही बुज़दिल हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो वालिद साहब का जिक्र छेड़कर मुझे ताव दिलाना चाहता था, लेकिन मैं उसकी चाल में ना आया और कहा कि तुमने मेरे किस रवैये से अंदाजा लगाया कि मैं बुज़दिल हूँ? क्या तुम इसे बहादुरी समझते हो कि मुझे आखिरी जंजीरों में जकड़कर खुद को फातिह तस्वर कर रहे हो? वो तंजिया लहजे में बोला, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो फिर मेरे हाथ पांव खोल कर देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल बहादुरी क्या होती है। तुम्हें चीर फाड़ कर न रख दिया तो मेरा नाम फैसल नहीं। उसने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए वालिद साहब के बाद मेरी वालदा का तस्करा किया था, लेकिन मैं उसकी चाल समझ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहादुरी आजमाने का पूरा मौका दूंगा फैसल, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं। दरअसल मेरे नजदीक ऐबी जानवर की न तो कुर्बानी जायज है और न ही लाचार दुश्मन पर हाथ उठाना। मैंने लाचार और बेबस नहीं हूँ। वो पूरी ढटाई से बोला, मुझे आजाद करके देख लो, मैं 2 मिनट में तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। मैंने तहम्मुल अमीज़ लहजे में कहा, अगर तुम बेबस और मजबूर नहीं हो तो फिर खुद आजाद हो जाओ। उसे मुझे गलीज गाली दी। उसकी इस हरकत पर शहजाद ने उसे धुनक कर रख दिया। मैंने फौरन शहजाद का हाथ रोक लिया और फैसल की आंखों में देखते हुए सफाकी से कहा, मैंने तुम्हारी ये गीदड़ बबकियां सुनने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की। अगर तुम इस कैसेट के जरिए अपने बाप को कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहते हो तो मुख्तसर अल्फाज में बक दो, वरना मैं टेप रिकॉर्डर बंद करता हूँ। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।